ભાઈ અનિલ કુમાર. ક્યાં રહેવાનું તમારે? વિજાપુર. ઓકે. આ કઈ કંપની છે અને એમાં તમે ક્યારે શું રોકાણ કર્યું, શું વળતર આપવાની વાત કરી હતી, શું સ્કીમ આપી હતી, વિગતે જણાવો. મેં ₹1,00,000 રોક્યા હતા. એમને 2% મને આપવાનું કીધું હતું. 2 મહિના માટે રોક્યા હતા. 2 મહિના પછી પરત પાછા આપી દીધા હતા એમને. કેટલા લાખના કેટલા આપ્યા તમે? લાખના જો ને સાહેબ 2% લીખે એટલે 2,000 વ્યાજ થાય. 4,000 આપ્યા હતા એમને. 2 મહિના પછી પરત પાછા આપી દીધા એમને. બીજા તમને કેવી રીતે જાણવા મળી સ્કીમ, અને બીજા કોઈ તમારા સર્કલમાં કોઈ રોકેલા પછી? ના, બીજા સર્કલમાં કોઈએ નથી રોક્યા. આમાં જે એજ્યુકેટિવ હતા એ મારા મિત્ર જ હતા. મારા અહીંયા સલૂન છે, સલૂન કસ્ટમર છે, રોજ આવતા જ હતા. એ રીતે વાત કરી હતી, રોકો સારું છે. ના, બીજી કોઈ સાહેબ નથી જણાવ્યું. તમે બીજા અન્ય રોકો એ પહેલા કંપની ઉઠી કે એવું કહેવાય? ના સાહેબ, એવું આપણો કોઈનો અભિપ્રાય વિશે તમારો કોઈ સંપર્ક થાય છે? તમારા જે એક્ઝિક્યુટિવ તમારો સંપર્ક હતો? ના સાહેબ, એવું નથી. સંપર્ક આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા સીઆઈડી ક્રાઇમમાં મળેલ માહિતી આધારે લગભગ 1 મહિનાથી અલગ અલગ જગ્યાએ સર્વેલન્સ ગોઠવવામાં આવેલ હતા. એ આધારે ગઈકાલે ગાંધીનગર, હિંમતનગર, અરવલ્લી, મહેસાણા અને બરોડા જિલ્લાઓમાં વિવિધ સ્થળે રેડ કરવામાં આવેલ, જેમાં મળેલ દસ્તાવેજ અને અન્ય કમ્પ્યુટર્સ અને અન્ય સાધનો તેમજ પૂછપરછમાં એ હકીકત બહાર આવેલ કે બીપી ઝાલા તેઓએ BZ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ નામના એક સંસ્થા ચલાવે છે. એ કોઈ અધિકૃત સંસ્થા નથી. RBI અથવા અન્ય કોઈ અધિકૃત સંસ્થા દ્વારા લાઇસન્સ મેળવ્યા વગર લોકો પાસેથી ઘણા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરાવી એને પ્રોમિસ આપેલ કે મહિના 3%થી લઈને સાલમાં 36% અથવા એના કરતાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રિટર્ન આપીશ એમ જણાવી ઘણા લોકો પાસેથી પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરાવે. એ સિલસિલા લગભગ 2020થી ચાલે છે અને હાલ સુધી કેટલા ભોગ બનનાર છે એ હાલમાં કહેવાનું મુશ્કેલ થશે, કારણ કે મોટી સંખ્યા હશે. અને ફક્ત લેટેસ્ટ એને જો બેંક એકાઉન્ટ ચેક કરાવવામાં આવે એમાં ફક્ત 2 એકાઉન્ટમાં લગભગ 175 કરોડ રૂપીસ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે. એના એમો એ છે મોટાભાગે શિક્ષકો અને નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓને ટાર્ગેટ કરેલ છે અને એ રીતે વધારે રિટર્ન મળશે એમ જણાવી આકર્ષિત કરીને પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરાવેલ છે. અને શરૂઆતમાં થોડા પૈસા રિટર્ન પણ આપે છે તાકી લોકોને ભરોસો આવશે અને વધારે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. એમ કરીને સિમ્પલ મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગ એક પોન્ઝી સ્કીમ છે, જેથી સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા ગઈકાલે કરવામાં આવેલ જે રેડ આધારે મળેલ માહિતી તેમજ જેને પકડવામાં આવેલ એ આધારે હાલમાં FIR રજીસ્ટર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. એમાં લગભગ જો 6 સ્થળ ઉપર મળેલ એ હકીકત છે. ઓફિસ ખાતાથી કાઉન્ટરમાંથી રોકડા મળેલ છે લગભગ 16.37 લાખ રૂપીસ, કમ્પ્યુટર 2, CPU 2, લેપટોપ 3, પ્રિન્ટર 4, મોબાઈલ 11 અને એગ્રીમેન્ટ અને જો ડોક્યુમેન્ટ રિલેટેડ લગભગ 340 ડોક્યુમેન્ટ્સ, અલગ અલગ પેઢી નામના પાન કાર્ડ, રબર સ્ટેમ્પ, સહીવાળા ચેક વગેરે બધા કબજા કરવામાં આવે છે. હાલમાં FIR રજિસ્ટ્રેશનની કાર્યવાહી ચાલુ છે. એમાં ખાસ કરીને GPID એક્ટ લગાવવામાં આવશે. એ ઉપરાંત જો નવા BNSના કલમ 316, 318, 62 મુજબ ગુના નોંધવામાં આવશે. હાલમાં એક જ એજન્ટ પકડવામાં આવેલ છે, એનું નામ અનંત દરજી છે. એ ઉપરાંત અન્ય એજન્ટોને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ રહે છે. એ એજન્ટને લગભગ 5 થી 25% એ લોકો જે પણ એજન્ટ, દાખલા તરીકે એજન્ટ 1 કરોડ રૂપિયાનું કામ લઈ આવે છે એને 5 થી 25% એજન્ટને આપે છે.
એ હાલમાં તપાસમાં બહાર આવે છે. સર, મુખ્ય આરોપી કોણ છે? એની સાથે બીજા સંકળાયેલા કોણ જે ફરિયાદ આપ દાખલ હાલમાં કરી રહ્યા મુખ્ય છો? આરોપી છે, નામ મેં કીધું ઓલરેડી કે ભૂપેન્દ્ર પરબતસિંહ ઝાલા. એની ઓફિસ છે રનાસન તલોદ સાબરકાંઠામાં આવે છે મેઇન ઓફિસ. એ ઉપરાંત દરેક જિલ્લામાં અલગ અલગ સ્થળે મેં જે કીધું 6 જિલ્લા, એ દરેક જિલ્લામાં એની ઓફિસ છે. એની ઓફિસમાં કામ માટે 2-3 છોકરાઓ છે. એ ઉપરાંત जो एजेंट है એ એજન્ટ કોણ કોણ છે હવે સામેથી મીડિયા મારફતે પણ અને પબ્લિક દ્વારા અમને માહિતી મળશે, એ આધારે તપાસ આગળ વધશે. એજન્ટ હાલમાં એક જ એજન્ટ પકડવામાં આવે છે જેનું નામ અનંત દરજી છે. સર, ગઈકાલે જે આપના તરફથી પ્રેસ રિલીઝ થઈ એની અંદર એક આંકડો આપવામાં આવ્યો છે કે અંદાજિત 6,000 કરોડ રૂપિયા એને લોકો પાસેથી એ એક મતલબ અમને જે માહિતી મળેલ છે ને એમાં મળેલ હકીકત છે. એ કેટલા 6,000થી વધારે પણ હોઈ શકે, ઓછા પણ હોઈ શકે, એ તપાસનો વિષય છે. આજે મુખ્ય આરોપી છે કે ભાગી ન જાય એના માટે આપના દ્વારા શું ये नॉर्मल जो पुलिस का खास करके सीआईडी ना जो एसओपी છે એ મુજબ તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. તો ये आई कैनॉट डिस्क्लोज શું કામ કરે છે, તબ તો ये लूप होल કોઈને ખબર પડવાની જોઈએ. ठीक, हिंदी में अभी तो गूगल आ गया, उसमें लगा दो मैं. ठीक, I'm just lighter than it. सीआईडी क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को लगभग 1 महीने के पहले एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि खास करके साबरकांठा, महसाना, गांधीनगर इस एरिया में एक पर्टिकुलर संस्था, अनधिकृत संस्था की पोन्सी स्कीम चला रहे. उसके बाद हम लोग सर्वेलेंस ऑर्गेनाइज किए थे. वो सर्वेलेंस में जो माहिती मिली उसके आधार पर कल शाम को संयुक्त एक रेड ऑर्गेनाइज किए थे. उसमें ऑल 6 डिस्ट्रिक्ट टीम्स वेंट और रेड के दौरान कुछ दस्तावेज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश सब मिला और साथ साथ जो ऑफिस में हाजिर थे उन लोगों को पकड़े. उसमें मोस्टली ऑफिस स्टाफ और एक एजेंट मिले. एजेंट का नाम अनंत दर्जी और जिसमें मेन जो सूत्रधार है ये भूपेंद्र सिंह परबत झाला. उनका मुख्य कार्यालय है रनासन तलोद में है. उसके अलावा जैसे जो 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला था उस सारे सभी डिस्ट्रिक्ट में रेंट में ऑफिस लेके रखे, वहाँ से ये सब काम कर रहे थे, लोगों को चीटिंग करना. इनका जो एमओ मेनली उनके टारगेट एक तो टीचर्स एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टारगेट करते हैं और उनको जो एग्जॉब मतलब वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं कि 3% पर मंथ से लेके पूरा साल का 36% इंटरेस्ट के साथ देंगे. बट इन लोग क्या चालाकी के जो अग्रीमेंट है उसमें तो खाली 7% ही लिखते हैं, पर मौखिक प्रॉमिस करते हैं कि 36% तक मिलेगा. और साथ साथ इनिशियली उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो पैसा जमा करते हैं उसको मोबाइल फ़ोन आता, टीवी, ऐसे कोई गिफ्ट भी देते हैं. और साथ साथ जो एजेंट्स हैं उनके लिए 5% से लेकर 25% तक पैसा ऑफर करें ताकि मोर एंड मोर इस तरह के विक्टिम्स को वो लोग लेके आए. शिकन अंदाज मैं नहीं लगा सकता हूँ. ये क्या है, जैसे अभी मीडिया में जाएगा, लोग सामने से आएंगे तभी हमें एक आइडिया होगा. पर ये लगभग 2020-21 से चल रहा है, तो आप अनुमान कर सकते हैं 4 साल से कितने लोग विक्टिम हो सकते हैं. आप सब जानते हैं पोन्सी स्कीम में क्या होता है, शुरुआत में आपको अट्रैक्ट करने के लिए पैसा देते हैं, जो प्रॉमिस करके देते हैं वो भी अपने पॉकेट से नहीं, दूसरा जो कस्टमर है उसका पैसा रोटेट करते हैं शुरू में. तो वो एक बार एक लेवल तक पहुंच जाता है, काफ़ी मतलब जो उनके टारगेट के हिसाब से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो गया फिर पैसा देना बंद कर देते हैं. सो ये पब्लिक को भी पता होता है एंड लोकली जो भी रहते हैं उनको भी पता होता है इस तरह का चल रहा है. पर थोड़ा जो इनिशियली जैसे मैंने बोला ना पैसा रिटर्न मिल रहा है इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता है, पर जब बंद हो जाता है तब कंप्लेन करना शुरू होता है. तो हम लोग जब एंटर किए ये कंप्लेन आने के पहले ऐसे प्रोएक्टिव मेजर में हम लोग किए, तो ओरिजिनली कोई विक्टिम हमारे पास कंप्लेन करने आया नहीं, बट वी केम टू नो थ्रू आवर सोर्सेस कि इस तरह का चल रहा है. इसलिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंप्लेनेंट टू कम, बाय द टाइम और काफ़ी विक्टिम्स हो जाएंगे, हम लोग एक प्रोएक्टिव मेजर से ये रेड ऑर्गेनाइज किए थे. सर, कोई खातों को फ्रीज किया गया है और क्या क्या चीजें हैं उनके पास से मिली हुई है?
एक तो फिलहाल एक तो मैंने आपको बोला था आनंद दर्जी, उनको डिटेन किए। उसके अलावा अराउंड 5-6 उनके एम्प्लॉयज को डिटेन किए। द FIR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गोइंग ऑन एंड ऑल दिस पीपल विल बी अरेस्टेड। उसके अलावा जो सीजर है, सीजर में कैश 16.38 लाख रुपीज सीज किए। उसके अलावा 2 कंप्यूटर्स, 3 लैपटॉप और प्रिंटर्स, मोबाइल फ़ोन 11 और जो अग्रीमेंट से जिसके विक्टिम से अग्रीमेंट किए होंगे लेटेस्ट है, वो उसमें लगभग 338 फॉर्म्स मिले। और उसके अलावा विड्रॉल फॉर्म, रिन्यूअल इन्वेस्टमेंट फॉर्म वगैरह सब मिले। उसके अलावा अलग अलग पेडी नाम का पैन कार्ड, रबर स्टैम्प, सही वाला चेक बुक, कवर्स, रिसिट बुक, कैश वाउचर, ये सब मिले। अकाउंट ऐसे मिले हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है? अकाउंट दो अकाउंट्स ICICI बैंक का अकाउंट्स हमने स्टेटमेंट निकाला है। उसमें अभी तक ट्रांसैक्शन लगभग 175 करोड़ का ट्रांसैक्शन उसमें हुई। सर, विजन ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप ने कोई कार्यवाही की है? इसके अलावा कोई ऐसा कोई ग्रुप आपके ध्यान में आया अगर कार्यवाही करने वाले? जब हमारे ध्यान पे आए तो हम करते हैं, आपके ध्यान पे आए तो हम बता दो। ये आपके जरिए मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ऐसे विक्टिम हुए ये उनके ध्यान पे है तो वी विल इमीडिएटली प्रॉम्प्टली टेक एक्शन। सर 6000 करोड़ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, किस तरह से सर आप इसे देख रहे हैं कि क्या इससे ज्यादा है, कम है? थोड़ा 6000 तो जो अनवेरिफाइड इनपुट था, तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कितने विक्टिम से कितने पैसे जमा किए। इसमें क्या है, कुछ लोग कैश में देते हैं, कुछ लोग चेक से देते हैं। जो चेक ट्रांजैक्शन मोस्टली बैंक अकाउंट में जाता है, उसके हिसाब से हमने जो एस्टिमेट किया अभी 175 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन दिख रहा है। उसके लोग कैश में जितने लोग दिए वो सब बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम में पता चलेगा कितने विक्टिम, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ विक्टिम्स वो अमाउंट वी कैन मेक एस्टिमेट, बट इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू टेल नाउ। फॉर एग्जांपल हम लोग जो डमी कैंडिडेट भेजे थे वो उसको बोल रहा था 10,000 तो हम लोग लेते नहीं अभी, अब 2-3 लाख रुपया जमा करेंगे तो लेते हैं। दैट्स व्हाट इज इट। सो डिपेंड्स, मतलब एक एक इंडिविजुअल कितने पैसे जमा करते हैं और कितने लोग जमा किए ओवर अ पीरियड, उसमें और पूरा पैसा उसके पास नहीं था। इनिशियली क्या है, टू गेन कॉन्फिडेंस, जो पैसा आता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ताकि और ज्यादा लोग आएंगे या वही लोग दोबारा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस समय पता चलेगा एक्चुअल विक्टिम्स जो साइज कितना है, कितना पैसा गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मुख्य सूत्रधार के साथ में क्या कोई और है जिस पर निशानदेही हुई है? क्या लग रहा है कि अभी सिर्फ एक ही मुख्य सूत्रधार है? किस दिशा में सब जा रही है? ये एक्चुअली पूरा हम लोग इनका रजिस्ट्रेशन डिटेल सब लेना पड़ेगा, वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक एक्ट या नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन तो और कोई डायरेक्टर्स है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कल ही हम लोग रेड किए, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव फुल डिटेल्स। वी कैन हैव दिस सिमिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस या 15 दिन 20 दिन के बाद हम लोग प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें जो भी डिटेल्स है वी विल शेयर इट। સર, बहुत मुश्किल है એ બધા લોકો સુધી પહોંચવું, તો લોકોને કોઈ અપીલ કે જેમણે આમાં રોકાણ કર્યું હોય અથવા છેતરાયા હોય તો આપના સુધી અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ જઈ અને વાત કરી શકે કે મેં રોકાણ કર્યું? जी, मैं आपके मार्फत यही अपील करना चाहता हूँ, जितने भी विक्टिम्स हैं या जिसको पता है इस तरह के पॉलिसी स्कीम चल रहे हैं, डायरेक्टली दे कैन अप्रोच SP EOW या DYSP मिस्टर अश्विन पटेल। इनके नंबर अभी शेयर कर देंगे प्रेस नोट के टाइम में, तो उनके डायरेक्टली दे कैन कॉन्टेक्ट। सर, ये नेशनल लेवल का स्कीम कहा जाएगा कि स्टेट लेवल का? मोस्टली इस तरह के जो हम लोग जब पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो महसाना, साबरकांठा, अरवली, शायद थोड़ा राजस्थान में भी एक्सटेंड हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वेदर दे हैव कवर्ड राजस्थान ऑल्सो। समटाइम्स गुजरात, महाराष्ट्र में भी कॉमन लोग होते हैं पॉलिसी स्कीम्स, वो यूजुअली वलसाड़, साउथ गुजरात में इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र साइड भी जाते हैं। तो इस साइड जो अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा वो सब होते तो हो सकता है दे माइट हैव टारगेटेड पीपल इन राजस्थान आल्सो, बट ये इट्स प्रीमेच्योर, अगेन वी विल कम टू नो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ कोई पॉलिटिकली कनेक्शन आता है ऐसा कुछ? नो नहीं, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? कर्मचारी को भी कुछ अरेस्ट किया है? हाँ जी, कर्मचारियों को अरेस्ट किया है? नो, वी विल डू इट। एक रिच वन एजेंट प्लस अदर स्टाफ। कर्मचारी उनको तो पता है ना, बिकॉज दे आर कलेक्टिंग मनी। वो कितने हैं? अराउंड 6 आई थिंक, 6 है ना?
6 लोग। Yeah.